Hello guys, today we are going to discuss preparations, different methods of preparation of alkenes. How are you going to prepare alkenes? Okay. Now the first method of preparation of alkene is controlled partial hydrogenation. Hydrogenation means addition of hydrogen across triple bond reduction process. Now why partial? What is the reason for that? Reason is if you have seen my lecture with respect to alkanes, in preparation of alkanes we have seen unsaturated compounds like alkenes and alkynes, they get hydrogenated in the presence of nickel catalyst or rann nickel or platinum palladium, and they convert that double and triple bond into alkane. Now we are going to stop in between. Alkynes will be reduced only to alkenes. Okay, so from your alkane we have seen if we see C, if we take C triple bond C or C double bond C, if we add hydrogen in presence of rann nickel, okay, or we can take platinum palladium as a catalyst, the hydrogen will be added across the triple bond or double bond completely, and it converts into one single product, that is alkane. So this was a complete reduction where the triple and double bond get converts into an alkane. In this reaction, to make an alkene, we require partial reduction. Matlab across the triple bond you add only 1 mole of hydrogen. In alkane you are adding 2 moles of hydrogen across the triple bond to convert into an alkane. Here we are going to add only 1 mole of hydrogen. That is why it is called as partial reduction. Matlab the reaction will stop at alkene. In case of nickel and platinum, it doesn't stop at the alkene position. Alkyne first convert into alkene, and alkene find convert into what? Alkane. But we are going to stop the reaction here. Alkene does not get further hydrogenated. So that is why we cannot use these reagents. These reducing agents are pretty strong. They will convert triple bond to single bond. We require some partial reducing agent. तो इसके लिए हम लोग 2 reducing agent use कर सकते हैं, Lindlas catalyst या Birch reduction process. In case of Birch reduction process, we take liquid or sodium in liquid ammonia, and in Lindlas catalyst we take palladium with CaCO3 which is poisoned by lead acetate. Poison means इसकी activity कम कर दोगे. If you take only palladium and you do not poison it, if you don't decrease the activity of the catalyst, it will reduce the triple bond into single bond. तो आपको palladium को कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट से पॉइजन करना है along with lead acetate, और you can use quinoline also. It's a kind of a diol. वो भी यूज कर सकते हैं, lead acetate भी यूज कर सकते हैं. तो मतलब if it is written palladium with CaCO3 or palladium with CaSO4 or palladium with BaSO4, it is a Lindlas catalyst. It clearly indicates there is only a partial reduction. There will only 1 mole of hydrogen added across the triple bond, and it will result into the formation of RC double bond C R H H. And if you see this, it's basically a cis alkene. So you get a cis alkene in this. अगर इसकी जगह पे सिर्फ पैलाडियम यूज कर दिया या निकल यूज कर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल पे. Okay, so you require to poison these catalysts, reduce the activity. Poisons are basically inhibitors. ये catalyst की activity को inhibit करते हैं. Okay, and in this reaction 98% of cis alkene is added if you use Lindlas catalyst. Now if you use a Birch reduction process or lithium aluminium hydride, ये दोनों reducing agent यूज किया तो ट्रिपल बॉन्ड will convert into a double bond. Partial reduction नहीं होगा, but you will get 100% trans product मिलेगा. मतलब when 1 mole of hydrogen is added, it form R C H double bond C H and R. So basically this is a trans product if you use a Birch reduction process or lithium aluminium hydride. Birch reduction क्या दिखना चाहिए एरो पे? Lithium और sodium reacted with liquid ammonia या added in liquid ammonia and alcohol. So Birch reduction होना चाहिए या lithium aluminium hydride, it will give you a trans alkene. Lindlas catalyst यूज किया तो it will give you a cis alkene. Triple bond will undergo partial reduction in presence of this. If you use rann nickel, platinum, palladium, ये सब है complete reduction process. Triple bond को सीधा alkenes में convert करेगा. मतलब for example if I write down here, if I take butene, use Lindlas catalyst, so you will get a product cis CH3CH double bond C CH3H, cis butene. And if you take a lithium aluminium hydride or Birch reduction process, hydrogen will be added across the triple bond to get a double bond product, but this double bond product will be a trans product. So you get a cis product if you use Lindlas catalyst, if you get a trans product if you use Birch reduction or lithium aluminium hydride.
Now sometimes we can also use nickel bromide, NiB, also known as P2 catalyst. याद रखना, NiB called as P2 catalyst. वो भी आपको ट्रांस अल्कीन देगा. किससे? अल्काइन से. It will convert this alkyne into trans alkene if you use P2 catalyst, that is NiB. Third, diboration process can also be used on alkynes. अल्काइन पे B2H6 आप ऐड करो और फिर सेकेंड स्टेप में एसिटिक एसिड प्रोटोलिसिस के लिए ऐड कर दो. पहले डाइबोरेन ऐड करो, देन प्रोटोलिसिस. ये सेम रिएक्शन आपने कहाँ देखा है? सेम रिएक्शन यू हैव सीन इन केस ऑफ अल्केन्स. वहां पर क्या हो रहा था? अल्केन्स में आपने डबल बॉन्ड कंपाउंड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया. हियर when you add hydrogen B2H6 in presence of acetic acid, this triple bond compound will convert into RCH double bond CHR. And when you further add B2H6 more amount, this double bond compound will finally convert into a single bond compound. तो ये reaction आपने alkanes में देखा है. But if you start with triple bond, the initial compound will be a double bond. Clear है? So you can also use diborane and then protolysis. Same reaction that of alkanes. Now mechanism of bridge reduction. Why it gives a trans product? तो मैकेनिज्म आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज रिमेंबर, इन ब्रिज रिडक्शन वी टेक सोडियम और लिथियम, अ मेटल. व्हेन अ मेटल इज एडेड इनटू लिक्विड अमोनिया, लिटिल बिट ऑफ पोलैरिटी इट हैज, इट्स अ पोलर सॉल्वेंट बट वेरी लेस. अमोनिया पे पोलैरिटी होती है, एन पे नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. सोडियम एक मेटल है, जिस आप सोडियम को वाटर में डालोगे वो आयोनाइज होके इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा. सिमिलरली इट विल प्रोड्यूस electrons which are solvated inside liquid ammonia. So these are the electron released by the sodium or lithium. They undergo a process called as oxidation. Oxidation is basically loss of electron and they convert themselves into a cations, which remains the solution. And you have now this solvated electrons. Now this one of the electron, after 2 moles, 1 mole of electron will attack on any of the triple bond carbon, due to which वन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्ट्स ऑन द अपोजिट कार्बन. जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा उसके अपोजिट पे शिफ्ट होगा. तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल स्ट्रक्चर दिखेगा और यहाँ पर एक कार्बन आयन. ये कार्बन आयन क्या करेगा? NH3 का H प्लस ड्रैग कर लेगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स ऑन NH2, ड्यू टू विच NH2 माइनस इज एक्सक्लूडेड, निकल गया, क्योंकि माइनस इसके लिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन पूरा इस पे शिफ्ट हुआ. H प्लस गोज एंड अटैच टू दिस कार्बन एटम, गिव दिस अ इंटरमीडिएट. अब इस फ्री रेडिकल पे एक और एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, सॉल्वेटेड वन, 2 moles है, टू कन्वर्ट इनटू अ कार्बन आयन. सेम दिस कार्बन आयन विल आल्सो एब्स्ट्रैक्ट H plus ions from this ammonia. It will abstract this H plus ions and convert a trans product. So this is basic mechanism. Ionization, then electron goes to one of the carbon atom, pi bond shifts on the another carbon atom, free radical, carbon ion abstracts the proton, then again a carbon ion, then it again abstracts the proton, same get a trans product here. Okay. So this was the first reaction with respect to preparation of alkenes. The second reaction is Kolbe's electrolysis, which you have seen in your alkenes chapter. एक छोटे से रिवीजन के लिए मैंने रिएक्शन लिखा है कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था. इन अ पोलर मीडिया यू टेक सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, Na+ बनेगा. क्लियर है? विच विल अंडरगो रिडक्शन एट कैथोड. CO2 गैस निकला था and R and R will combine at anode. RCO माइनस बना था, RCO माइनस का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, देन CO2 गैस निकलता. तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया था कि यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, बोथ द R you connect them together to form a higher alkane, plus CO2 is released, plus sodium will be deposited. तो सोडियम कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा था? कैथोड पे, बाय रिडक्शन प्रोसेस. ये दोनों कहाँ पर लिबरेट हो गए? एट एनोड, बाय विच प्रोसेस? ऑक्सीडेशन. तो आपको इसमें शॉर्टकट क्या रखना है इन केस ऑफ कोल्बोज इलेक्ट्रोलिसिस? वंस अगेन के यू रिमूव CO2 और जो कार्बन से आप CO2 निकालोगे वो 2 कार्बन को आप अटैच कर दो. जैसे इस एग्जांपल में यू टेक सोडियम सक्सिनेट, अल्कीन्स बनाना है. तो नाउ सोडियम सक्सिनेट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड. सक्सिनिक एसिड इज CH2COH CH2COH. एक चीज याद रखना आप लोग, COH को ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं. ओके, देन COH CH2COH is called as malonic acid. Malonic acid मैं लिख देता हूँ बेस में, oxalic, malonic. Then you have COH CH2COH. This is called as succinic acid. Succinic acid is made up of having 2 methylene group in between.
Now COH, if there is 3 methylene group, CH2 thrice COH. This will be called as glutaric acid. Okay, 3 CH2 group है. If you have COH attached to CH2, कितना टाइम? 4 times COH. This is called as adipic acid. Adipic acid. Oxalic, malonic, succinic, glutaric, adipic. And if you have a COH attached to CH2, 5 times COH, this will be called as pimelic acid. So you have oxalic, COH, malonic, succinic, glutaric, adipic, pimelic. सब dicarboxylic acid है. सबके अंदर 2 COH ग्रुप है. Now if I want to make a salt of it, I react with NaOH. तो NaOH से रिएक्ट करूंगा तो यहाँ से H निकल जाएगा, NaOH का OH निकल जाएगा, दोनों जगह पे सोडियम आ जाएगा, बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड. इससे बना है सक्सिनिक एसिड. तो रूल क्या है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का कि सोडियम 2 moles ऑफ सोडियम विल डिपॉजिट एट कैथोड, प्लस आपको दोनों जगह के CO2 निकालने हैं, 2 CO2 एट एनोड, प्लस जो कार्बन से आप CO2 निकालोगे उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है. तो इनके बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड है. सो व्हेन यू रिमूव दिस 2, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों के बीच में बॉन्ड आएगा, यू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज हाउ इथीन इज प्रिपेयर्ड. बट दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रिपेयर साइक्लोअल्केन्स. कैसे? लेट्स सी. साइक्लोअल्केन्स भी बनाने काम आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने काम आते हैं. लेट्स सी. Okay, suppose if I take potassium glutarate. Glutarate has 3 CH2. अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को उसके नेक्स्ट पेज पे. It has 3 CH2. तो again if you get undergoes Kolbe's electrolysis, first you remove the metal, it will deposit at cathode, plus you remove 2 CO2 as usual. ये दोनों CO2 निकाल दो. Now जो भी कार्बन से आप CO2 निकालोगे ज्वाइन कर दो. So you remove CO2 from here, from this carbon atom and from this carbon atom. So you join this 2 carbon atom, so you get a structure CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. क्या हो गया ये? साइक्लोप्रोपेन. दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट. बट कभी कभार क्या होता है कि वन साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, इफ यू रिमेंबर, दिस विल अंडरगो फ्री रेडिकल. ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का एक साइक्लोप्रोपाइल फ्री रेडिकल CH2 बॉन्ड CH2 विद इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह पे होमोलिसिस होगा ना. मैकेनिज्म याद होगा अल्कीन से. सो इफ दिस 2 कार्बन रिएक्ट विथ ईच अदर, यू गेट अ साइक्लोप्रोपेन, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है बिकॉज फ्री रेडिकल एक ही कंपाउंड में बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं. दे आर हाईली अनस्टेबल. सो ये बहुत फास्ट रिएक्ट करके ये मेजर बनाएगा. बट ऐसा भी हो सकता है कि सम फ्री रेडिकल्स विल कंबाइन विथ ईच अदर. मतलब एक साइक्लोप्रोपाइल दूसरे साइक्लोप्रोपाइल से कंबाइन हुआ, जिसके वजह से यू गेट अ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 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 एंड बॉन्ड CH2. बन गया क्या? साइक्लोहेक्सीन. लेकिन ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा? माइनर. रिमेंबर दैट. बट मेजर बनेगा साइक्लोप्रोपेन. अब जैसे ये रिएक्शन है, सोडियम एडिपेट लिया 4 CH2, यहाँ से निकाल दोगे आप, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन. ये चारों कंबाइन हो गया, जो मेजर रहेगा. फिर एक ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि 4 and 4 आपस में कंबाइन हो जाए. तो 4 and 4 आपस में कंबाइन हो जाएंगे. So you have a 4 attached. So basically you will get 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन. बट ये आपका माइनर बनेगा. क्लियर है? नाउ इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ 2,3 डाइमिथाइल सोडियम सक्सिनेट. मतलब ये सोडियम सक्सिनेट था, इसके 1 2 3 4 सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन डाइमिथाइल रखा है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप ये ग्रुप निकाल दो यहाँ से, आप ये ग्रुप निकाल दो. ये दोनों कार्बन से निकाला है, पूरा डबल बॉन्ड इन बिटवीन, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड है. सो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H cis butene, प्लस यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH3H. ट्रांसब्यूटुइन जो आपका मेजर होता है बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होता है, सिस वाला माइनर होता है. ओके, प्लस 2 CO2 प्लस 2 Na. नाउ इफ यू हैव 2 रिंग्स, तो अगेन यहाँ से जहां से CO2 निकल जाएगा, ये पॉइंट पे आ जाएंगे फ्री रेडिकल. ये दोनों को आपको कंबाइन कर देना, फ्री रेडिकल्स को. सो वन ग्रुप विल बी अटैच टू दी अनदर ग्रुप. तो यहाँ पर भी मैं एक बॉन्ड बना देता हूँ.
So you have 2 cyclohexane group attached to each other plus 2 CO2 plus 2 Na. दिख रहा है आपको कैसे रिंग फॉर्मेशन बढ़ सकता है. नाउ एक ही रिंग के अंदर 2 है तो नो प्रॉब्लम, यहां से ब्रेक कर दो, जहां पर CO2 वहां से ब्रेक कर दो, ये दोनों के बीच में कार्बन के बीच में यू पुट एक्स्ट्रा बॉन्ड हियर, इट विल गिव यू अ cyclohexene. दिस विल बी अ मेजर प्रोडक्ट. बट ऐसा भी हो सकता है 2 CO2 plus 2 Na कि एक रिंग पूरी 2 फ्री रेडिकल वाली दूसरी रिंग से फ्यूज हो जाए. सो यू विल गेट अ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स लाइक दिस. यहां से फ्यूज हुए इस पॉइंट से, ये दोनों कार्बन से फ्यूज हुआ, हो सकता है. बट ये आपका माइनर होगा. वाई दिस इज माइनर? बिकॉज फ्री रेडिकल एक ही कंपाउंड में ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो आपने अभी इस एग्जाम्पल में देखा था. सेम एग्जाम्पल. नाउ यू टेक सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड. मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड में यहां पर COH और COH होगा दोनों जगह पे, मतलब सिस डाइकार्बोक्सिलिक विद अ डबल बॉन्ड. और अगर ट्रांस डाइकार्बोक्सिलिक होता है तो उसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं. तो यू टेक सोडियम मैलेट या सोडियम फ्यूमेरेट, डजंट मैटर, दोनों आपको एक ही रिजल्ट देगा क्योंकि दोनों सेम ही कंपाउंड है. सिर्फ एक सिस होता है, उसको हम लोग मैलिक एसिड से बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्म को हम लोग फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं. सो इफ यू टेक सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, यू रिमूव दिस CO2 फ्रॉम योर, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो पुट एक्स्ट्रा बॉन्ड योर, सो यू विल गेट HC ट्रिपल बॉन्ड CH अल्काइन प्लस CO2 प्लस 2 Na. सेम देखो यहां से भी वही होगा, ये ब्रेक करोगे आप और ये ब्रेक करोगे तो ये दोनों कार्बन के से ब्रेक किया है तो ये दोनों कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाएगा, डबल से क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड. सो अल्काइन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मेथड. ओके, नाउ सपोज ये एग्जांपल लिया है, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. अगर एक कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में आएगा तो फ्री रेडिकल बनता है, तो इसका फ्री रेडिकल कैसा फॉर्म होगा? सपोज आई रिमूव 2 CO2 एंड 2 Na, आई रिमूव फ्रॉम योर, यहाँ होमोलिसिस होगा दोनों जगह पे, सो यू गेट दिस टाइप ऑफ फ्री रेडिकल. See, this is the free radical form. Now what will happen? This bond or this bond, one of the bond will undergo homolysis. एक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा. अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया मतलब ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको. मतलब मैं बना रहा हूँ ये इंटरमीडिएट इतना फास्ट है कि यू कैन नॉट आइसोलेट देम, बट आई एम जस्ट मेकिंग इट फॉर द एक्सप्लेनेशन. अब ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे आपस में, एंड द फाइनल प्रोडक्ट कोई भी इसको प्रेडिक्ट कर सकता है, बेंजीन. एरोमेटिसिटी इज रिस्टोर, एरोमेटिसिटी मिल गई है तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा. क्लियर है? सो दिस इज हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म. अगर कोई बोलेगा सर मैं ये अटैच कर दूं बीच में दोनों को, नो, दिस इज मोर अप्रोप्रिएट एरोमेटिक कंपाउंड. वो भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन का था बहुत पहले, बट वो अप्रोप्रिएट इतना नहीं होगा, ये अप्रोप्रिएट होगा. क्योंकि इफ यू मेक अ बॉन्ड योर, अगर आपने यहाँ पर एक फ्री रेडिकल ये दोनों को आपस में अगर ज्वाइन कर दिया और ऐसा कुछ कंपाउंड बना दिया ज्वाइन करके, तो दिस वाज दी वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, अर्लियर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. बट ये स्ट्रक्चर जो है इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था, बेंजीन ज्यादा अप्रोप्रिएट इस फॉर्म में है. सो यू मेक दिस स्ट्रक्चर एज मोर अप्रोप्रिएट एंड दिस इज द मेजर फॉर्म. अगर आपने मेरा बेंजीन का वीडियो देखा होगा एरोमेटिसिटी का, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था ये स्ट्रक्चर. दिस वाज द अर्लियर डिराइव्ड स्ट्रक्चर, और यू कैन सी अ प्रेडिक्टिव स्ट्रक्चर, पर वो इतना ज्यादा प्रेडिक्शन स्ट्रांग नहीं था उसके लिए. नाउ the next preparation after Kolbe's electrolysis is dehalogenation. Now what is the meaning of dehalogenation? Very simple. Dehalogenation means removal of halogen. That's it. D means removal of halogen. From where? From vicinal or geminal dihalides. What is the meaning of dihalides? Dihalide means a molecule having 2 carbon. Vicinal means, dihalide means a molecule having 2 halogens. Vicinal means both the halogens are present adjacent, neighboring carbon. और अगर दोनों सेम कार्बन पे हुआ, it is called as geminal. तो geminal dihalide means 2 halogen on the same carbon, and vicinal dihalide means 2 halogen on the adjacent carbon atom. कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को आप रिएक्ट कर दो जिंक से, तो X with zinc चले जाएगा, या ये दोनों X with zinc चले जाएंगे, and it forms C, यहाँ से निकल गया double bond C plus ZnX2. Very simple reaction. See, you take zinc and 2 bromine here, you remove ZnBr2, you get CH2 double bond CH2 extra bond with ZnBr2. अच्छा, यहाँ पर से आपने निकाल दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, तो you get CH3 CH, okay, double bond CH2 plus ZnBr2. Is a transfer of hydrogen take place in this. सो यू गेट अ विसिनल और जेमिनल, अल्टीमेटली जिंक डस्ट से दोनों अल्कीन बन जाएंगे. विसिनल में याद रखने का दोनों हैलोजन एडजेसेंट पे होगा, और जेमिनल में दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे होता है. अच्छा, मुझे ना एक क्वेश्चन भी मैंने देखा था, माय दैट क्वेश्चन
was give an explanation, वो ऐसा मॉलिक्यूल बनाया था CH2Br CH2Br एंड जिंक डस्ट। प्रोडक्ट क्या था? तो यू रिमूव Br एज यूजुअल, और जहाँ से आप Br निकालते हो वो दोनों कार्बन को आप ज्वाइन कर दो, तो कार्बन ज्वाइन हो जाएगा, तो CH2 ये तो ऐसी था, ये दोनों ज्वाइन कर दोगे आप तो यू गेट अ साइक्लोप्रोपेन प्लस ZnBr2। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके, गैमा एलिमिनेशन में। दिस वाज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गैमा, सो दिस कैन बी कम अंडर गैमा एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके। रिमेंबर few points. Geminal dihalide means halogen on the same carbon, two halogen on the same carbon on reaction with sodium in presence of dry ether. Sodium dry ether मतलब Wurtz reaction gives higher alkene. This is basically an extension of Wurtz reaction, huh? And smaller alkene as a minor product. Let's see कैसे। सपोज मैंने लिया है 1,1 डाइब्रोमो इथेन, उसको रिएक्ट किया सोडियम से, जिंक नहीं ऐड किया, सोडियम ऐड किया विसिनल में और ड्राई ईथर से रिएक्ट किया, तो क्या होगा, ये NaBr पूरा निकल जाएगा, मतलब -4 NaBr इज रिमूव। ये CH3CH, ये CH3CH से अटैच होगा तो यू गेट स्ट्रक्चर CH3CH डबल बॉन्ड CH3H3, हायर अल्कीन, मतलब 2 कार्बन से आप सीधा 4 कार्बन का अल्कीन बना रहे हो। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा लिखता है कि सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम लोगों ने जिंक में देखा था, नो प्रॉब्लम, वो भी बनेगा, बट इट विल बी इन वेरी 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 लेस अमाउंट, माइनर प्रोडक्ट। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट इफ यू यूज सोडियम इंस्टेड ऑफ जिंक। ये जेमिनल के लिए था, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए। विसिनल के लिए क्या पॉइंट है, कि विसिनल का डीहैलोजिनेशन यू कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट बाय यूजिंग सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन, आपने फिनकिल्स्टन रिएक्शन देखा होगा अल्केन्स में। फिनकिल्स्टन रिएक्शन के अंदर वी टूक ओनली मोनोहलाइड, हम लोगों ने RBr और RCl को NaI से रिएक्ट करके Ri बनाया था, ओके। बट इफ यू टेक NaI विद विसिनल डाइहैलाइड, नॉट मोनोहलाइड, आपने ये वाला रिएक्शन देखा था उधर पे, CH3 CH2Br प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो NaI रिप्लेस कर देगा Br को, CH3 CH2I प्लस NaBr। तो ये रिएक्शन यू हैव सीन इन अल्केन्स, फिनकिल्स्टन रिएक्शन, बट ये मोनोहलाइड है। यहाँ पर मैं डाइहैलाइड लूंगा और सोडियम से रिएक्ट करूंगा, तो व्हाट विल हैपन, बोथ द ब्रोमीन will eject from their place, there is a formation of double bond CH3CH double bond CH2 plus NaBr भी बनेगा, लेकिन I2 एलिमिनेट हो जाएगा, आयोडीन अटैक करके निकल जाता है। मैकेनिज्म हमको जरूरी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है विसिनल के लिए और जेमिनल के लिए, जहाँ पर आपको अल्कीन्स तो मिलेंगे बट डिफरेंट मैनर में। जेमिनल के साथ सोडियम यूज किया तो एक्सटेंशन ऑफ वुर्त्ज रिएक्शन, गेट अ हायर अल्कीन। विसिनल में अगर आपने ड्राई एसीटोन NaI यूज किया तो यू गेट अ अल्कीन, सॉरी vicinal में, but if you use a monohalide Finkelstein reaction you will get a iodide product, okay। So we have finished 3 reaction: partial hydrogenation, Kolbase and dehalogenation of vicinal. Let's move on to the next chemical reaction. The next preparation is by using Grignard reagent with alkenyl halide. Alkenyl halide is basically halogen. You need a compound where a halogen group is attached to C double bond. That is called as alkenyl. Alkenyl. En stands for this double bond. Halide. मतलब halide is attached to the carbon which is double bonded. Now this compound should be reacted with Grignard. तो simple होगा, ये bond X का break हो जाएगा, R का break होगा, R will goes to C and X will goes to Mg. Remember, X will have partial negative charge, this C will have partial positive charge because halogen is more electronegative than carbon. इसमें मैग्नीशियम मेटल है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंड एवरी टाइम दिस R is negative, so negative goes to positive, negative goes to this positive. The compound breaks to form RCH double bond CH R plus MgX2. For example, methyl magnesium iodide is reacted with iodopropene, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मिथाइल गोज टू दिस CH, इट फॉर्म्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटीन प्लस MgI2. सिंपल रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन यू हैव सीन दिस रिएक्शन इन E1 एलिमिनेशन एंड E2 एलिमिनेशन. मैंने वो वीडियो में बनाया था, फिर भी हम लोग उसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे. दैट इज dehydrohalogenation of alkyl halide and the removal of hydrogen and halogen from alkyl halide, that is RX. RX को हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CXH
तो अल्फा से हैलोजन निकल जाएगा और बीटा से H निकलता है. Therefore, this is also called as beta elimination reaction. Okay, what we are using here? Alcoholic KOH.